Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are well. Today we are going to discuss the chemistry portion of NBTS test number 2. So, the first question of the test is, gas in a cylinder is maintained at 10 atmospheric pressure. So, initially we are having a gas which is maintained at 10 atm pressure and 300 Kelvin temperature. So the T1 will be the 300 Kelvin. The cylinder will explode if pressure of a gas goes beyond 15 atm. Means we are given the condition that is P2 will be the 15 atm and the cylinder will explode if pressure of a gas goes beyond 15 atm. So what is the maximum temperature to which gas can be heated? So we have to calculate the value of T2 here. So we can do this. P1 divided by T1 is equal to P2 divided by T2. What is the value of P1? P1 का value यहाँ पे है 10 atm divided by what is the value of T1, that is 300 Kelvin, and P2 का value है 15 atm, and we have to calculate this T2. So if we cancel here 0 and 0, it will be 1 upon 30, and T2 will be directly equal to 30 into 15. That will be 30 into 15, it will be 450 Kelvin. So this is the temperature T2 which we have to calculate. This will be the answer. So the option of this question will be the part number C. Now, I hope this will be clear to you. So question number 2. At a certain temperature, the time required for the complete diffusion of 200 ml of H2 gas is 30 minutes. Means at a certain temperature, the time required for the complete diffusion of, so the volume of H2 is given, that is 200 ml, and this gas diffuses in 30 minutes, right? The time required for the complete diffusion of 50 ml means we have to calculate the time for the complete diffusion of O2 gas जिसका वॉल्यूम हमारे पास है, that is 50 ml. Now कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? एक्चुअली रेट ऑफ H2 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ O2, हम इसे लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2. ये हमारे पास है इक्वेशन. नाउ इस रेट को हम यूज कर सकते हैं बिकॉज रेट का एक माना ये है कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम. नाउ तो हम इस रेट के बदले लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ H2 गैस डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन T ऑफ H2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ O2 के बदले लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय O2 फॉर इट्स कंप्लीट डिफ्यूजन. हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, दैट इज 32. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, दैट इज 2. तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, इट विल बी 16, एंड 16 को लिख सकते हैं हम 4. अंडर रूट ऑफ 16 को हम 4 लिख सकते हैं. नाउ अब इसको फर्दर हम कैसे करें? वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ऑफ H2, वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ऑफ O2, ये हमें आया 4 के बराबर, राइट? अब वॉल्यूम ऑफ H2 हमारे पास था 200 ml और इसमें हमें टाइम कितना लग रहा था? इसमें हमें 200 ml ऑफ H2 गैस को डिफ्यूज होने में लगते थे 30 मिनट्स और O2 के 50 ml डिफ्यूज होने के लिए हमने टाइम निकालना है. तो सॉरी, नाउ तो इसके बदले हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय H2 दैट इज 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 50 ml और इसके लिए हमने टाइम निकालना है, तो इट विल बी इक्वल टू 4. इस 0 और इस 0 को हम कैंसिल कर सकते हैं. इट विल बी 20 डिवाइडेड बाई 3 इंटू TO2 डिवाइडेड बाई 50 ml, ये आएगा 4 के बराबर. नाउ इस एक 0 को और इस एक 0 को भी कैंसिल कर सकते हैं. इट विल बी
यहां पे हम करेंगे, सो इट विल बी ट्वाइस टी ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 3 into 5 is equal to 4. So it will be, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, it will be TO2 divided by 15 is equal to 2. It will be TO2 is equal to 2 into 15 और ये आएगा 30. अब टाइम दिया था मिनट्स में, तो यहां पे हम लिख सकते हैं मिनट्स. तो हमारे सवाल का आंसर जो आएगा डेट विल बी 30 मिनट्स. तो पार्ट B will be the answer for 52 question. Now, question 53. Equal masses of helium, O2 and SO2 are taken in a closed container. The ratio of the partial pressures of a gas is helium, O2 and SO2 would be. Equal mass दिया गया है किस किस का, helium, O2 and SO2 का. तो हम लिख सकते हैं mass of helium is equal to mass of O2 is equal to mass of SO2. इसको हम जनरलाइज करेंगे by m. तो इतना मास इन तीन गैसेस का दिया गया है और हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर. तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो हम कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम RT डिवाइडेड बाई V. तो ये आएगा V मिक्सचर. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 into RT divided by V mixture. Partial pressure of SO2 इसे हम लिख सकते हैं number of moles of SO2 RT divided by V mixture. तो इतना तो हम लिख सकते हैं. हम ये भी जानते हैं number of moles is equal to mass divided by molar mass. तो इतना तो हम जानते हैं. तो इस n का वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे by m upon m. तो यहां पे हम लिख सकते हैं mass divided by molar mass of helium RT upon V mixture. तो यहां पे लिख सकते हैं mass of O2 divided by molar mass of O2 RT divided by V mixture. Similarly यहां पे लिख सकते हैं mass of SO2 divided by molar mass of SO2 RT divided by V mixture. Now ये मास और मास जो है हीलियम का, इन तीनों के बदले हम लिख सकते हैं m m and m, क्योंकि इन तीनों का मास एक जैसा है, बराबर है, जिसको हम इक्वलाइज किए हैं m के बराबर. तो ये वाला m, ये वाला m और ये वाला m तीनों कटेंगे. दिस RT V मिक्स कैंसल, RT V मिक्स कैंसल, RT V मिक्स कैंसल. तो हमारे पास क्या बचेगा? तो हमारे पास क्या बचेगा? इसका आंसर हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हीलियम, एंड मोलर मास हीलियम का कितना है 4. दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ O2, वो कितना है 32, एंड दिस विल बी 1 अपॉन मोलर मास ऑफ SO2, वो कितना है, डेट विल बी 64. तो हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम आया वो इतना आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो इतना आया, और पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 जो है वो इतना आया. अब हमने इन तीन का रेशियो निकालना है. इट विल बी 1 अपॉन 4 इज टू 1 अपॉन 32 इंटू 1 अपॉन 64. अब यहां से एलसीएम निकालेंगे. इट विल बी 16 इज टू 2 इज टू 1. तो ये आपको आएगा. नाउ दिस विल बी द आंसर. तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है, इसमें हमने क्या करना है. फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस द स्लोप ऑफ V वर्सेस T कर्व एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर इज x लीटर पर मोल पर केल्विन. द वैल्यू ऑफ द आइडियल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इन टर्म्स ऑफ x इज. नाउ इसको हम कैसे करेंगे? स्लोप ऑफ V वर्सेस T कर्व जो है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई V, nRT डिवाइडेड बाई P. तो ये वाला कांस्टेंट है, इसको हम करेंगे y इज इक्वल टू mx के साथ कोरिलेट. तो जो हमारा m स्लोप आएगा डेट विल बी nr अपॉन p. वो एज पर द क्वेश्चन किसके बराबर है? 2 एटमॉस्फेयर. वो एज पर द क्वेश्चन x लीटर पर मोल पर केल्विन के बराबर है. x लीटर पर मोल पर केल्विन, ये हमारे पास है स्लोप. नाउ हमने निकालना है r का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x. मींस इस प्रेशर का वैल्यू हमारे पास दिया गया है, वो कितना है 2 एटमॉस्फेयर. तो हम लिख सकते हैं nr डिवाइडेड बाई p, p के बदले 2 एटमॉस्फेयर लिखेंगे. ये है बराबर x लीटर
per mole per Kelvin. Now for 1 mole of a gas, तो इस n के बदले हम लिख सकते हैं 1 into R. So R will be twice x liter. ये वाला एटमॉस्फेयर इसको हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट, इट विल बी पर मोल पर केल्विन. सो twice x liter atmosphere per mole per Kelvin, this will be the answer. Moving to the question number 55. A bubble of air is underwater at temperature 15 degrees Celsius. Means ऐसे हमारे पास एक केस है, दिस इज वाटर, तो यहाँ पे एक बबल है, ठीक है, और ये है 15 डिग्री सेल्सियस पे. तो T1 ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, डेट इज 15 डिग्री सेल्सियस, एंड द प्रेशर 1.5 बार, और जो P1 है डेट इज 1.5 बार. If the bubble rises to the surface where the temperature is 25 डिग्री सेल्सियस, अब अगर जो यहाँ पे आएगा ये बबल, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस पे प्रेशर ज़्यादा है, इस लिक्विड कॉलम की वजह से भी है ρgh, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है यहाँ पे. अब जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इट विल फील ओनली P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से ना ये फूलेगा अब यहाँ से लेके यहाँ तक. नाउ यहाँ पे इस वाली कंडीशन पे टेम्परेचर कितना है, डेट एग्जैक्टली चेंज, वो कितना है 25 डिग्री सेल्सियस एज पर द क्वेश्चन, एंड द प्रेशर इज 1 बार, और जो प्रेशर है वो है 1 बार के बराबर. व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ द बबल? एक बात तो तय है, वॉल्यूम ऑफ द बबल विल इंक्रीज. क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर प्रेशर कम है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. अब हमसे पूछा गया है वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, ये तो ठीक है कि बढ़ेगा, सो वॉल्यूम विल बिकम ग्रेटर. इन दो में से आंसर होगा, हाँ इसमें भी आंसर हो सकता है, बट बाय व्हाट फैक्टर? 1.6, 1.1, 0.7, 2.5. तो इसको हम कैसे करेंगे? तो हम लिख सकते हैं एज P भी चेंज होता है, T भी चेंज होता है, V भी चेंज होता है, तो हम लिखेंगे P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2. नाउ P1 कितना है? इट इज 1.5 बार. वेरी गुड. व्हाट्स T1? T1 इज 15 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हुआ? 273, 283 एंड 288 केल्विन. और V1 के बदले हम V लिखेंगे. P2 कितना है? P2 एज पर द क्वेश्चन कितना है? 1 बार. एंड व्हाट इज V2? V2 हमने निकालना है, बाय व्हाट फैक्टर इट इंक्रीजेस. एंड व्हाट इज टेम्परेचर T2? वो T2 यहाँ पे डिसाइड होगा 25 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी 298 केल्विन. अब इसको जब हम बार और बार कैंसिल होगा, केल्विन कैंसिल होगा, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे घर में, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.58 तो 1.6 के अराउंड. ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा जब बबल हो जाएगा राइज फ्रॉम द बॉटम टू द सरफेस. नाउ question number 56. The RMS velocity of CO gas molecule at 27 degrees Celsius is approximately 1000 meter per second. For N2 molecule at 600 Kelvin, the RMS velocity is approximately. तो हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं जो VRMS है ना, ये होता है अंडर रूट ऑफ 3 RT डिवाइड बाई M के बराबर. ओके, अब कैसे करें? अब हम मानते हैं इसको VRMS, the RMS velocity of CO gas molecule at 27 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम मान सकते हैं 300 केल्विन के बराबर, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकेंड. तो इसकी हम लिखेंगे ऐसे, इसको रब करेंगे यहाँ पे, इसकी बदले लिखेंगे सीधे 1000 मीटर पर सेकेंड, और इस टेम्परेचर के बदले हम सीधे लिखेंगे 3R, T के बदले 300 केल्विन अंडर रूट divided by 3R 300 Kelvin divided by molecular mass of CO. Correct? Now for N2 molecule at 600 Kelvin the RMS velocity is approximately. अब जो VRMS हमने N2 के लिए निकालना है that will be 3R, लेकिन जो टेम्परेचर है डेट इज 600 केल्विन, तो हम यहाँ पे 600 केल्विन लिखेंगे. एंड व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ N2, वो हम लिखेंगे यहाँ पे. क्लियर? यहाँ तक सही है. वो इक्वेशन थी, RMS दिया गया है CO के लिए डेट इज 1000 मीटर पर सेकंड, टेम्परेचर भी दिया है 300 केल्विन. अब 600 केल्विन पे हमने निकालना है VRMS, लेकिन किसके लिए? फॉर N2 के लिए. तो हम इसे कैसे करेंगे? यहाँ पे हम सीधे रेशियो लेंगे. इट विल बी 1000 डिवाइडेड बाई VRMS ऑफ N2, इट विल बी इक्वल टू
it will be equal to under root of 3R 300 Kelvin divided by molar mass of carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 12 प्लस 16 वो कितना हुआ 28. अब N2 का कितना है 14 वो भी आएगा 28 14 इंटू 2. क्लियर. अब मोलर मास तो दोनों गैसेस का है बराबर, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी और N2 का भी. तो ये मोलर मास इसके बदले हम लिखेंगे 28 डिवाइडेड बाई इट विल बी 3R 600 Kelvin डिवाइडेड बाई 28. अब 28 कैंसिल, 3R कैंसिल. अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचेगा 300 डिवाइडेड बाई 600. इसको कट कर लो, इट विल बी 1/2 को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2. तो इसका जो आंसर आएगा ना इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2. तो हमारे पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी दैट विल बी दिस. अब हमने निकालना है VRMS और ये निकालना है N2 के लिए. ये आएगा 1000 इंटू अंडर रूट ऑफ 2. अंडर रूट ऑफ 2 हम जानते हैं 1.414 के बराबर है. दैट विल बी 1000 इंटू 1.414 इट विल बी 1414. तो मीटर पर सेकंड ये आएगा आंसर इसका. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. By what factor does the average velocity of a gaseous molecule increase when the temperature in Kelvin is doubled? तो मान लो हम यहाँ पे लिखेंगे V average ये होता है अंडर रूट ऑफ 2RT डिवाइडेड बाई m के बराबर. इसको मानते हैं V एवरेज फर्स्ट जब हमारे पास टेम्परेचर कितना है T केल्विन. अब V एवरेज कितना बनेगा जब आप टेम्परेचर को कर रहे हो डबल. तो आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हो कितना, पहले हमने 2 लिया T लिया, अब 2T लेते हैं डिवाइड बाई m. एंड दिस इज फॉर द सेम गैसेस मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2R कैंसिल, m कैंसिल. अब T और T कैंसिल, ये आएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2 के बराबर. तो जो V एवरेज फर्स्ट है वो कितना दिया गया है, उसको V एवरेज 1 ही मानते हैं डिवाइडेड बाई V एवरेज सेकेंड. इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2. आगे हम इसे करेंगे, इट विल बी V एवरेज when temperature is doubled it will be equal to V average जो initially था at temperature T1 into under root of 2, that will be 1.414 times V average which is given initially. So the answer of this question will be the part D. आगे चलते हैं. नाउ इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, a gas at 30 Kelvin at 15 bar has molar volume 20% smaller than that for an ideal gas under the same condition. The correct option about the gas and its compressibility factors that is. तो ये तो जाहिर सी बात है, हमारे पास गैस है जिसका टेम्परेचर कितना है 350 Kelvin, राइट. अब इसका जो प्रेशर है वो कितना है 15 बार. अब इसका जो मोलर वॉल्यूम है वो रिड्यूस हुआ है, डिक्रीज हुआ है कितना 20% स्मॉलर देन डेट फॉर एन आइडियल गैस. हम जानते हैं Z इसको लिख सकते हैं V ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई V आइडियल की भी बराबर. तो जो ऑब्जर्व वॉल्यूम है ना वो कम हुआ है एज कंपेयर टू द आइडियल वॉल्यूम. अब आइडियल वॉल्यूम से जब ऑब्जर्व वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ये इस बात की रिफ्लेक्शन है कि जो अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स है ना उनमें इंटरैक्टिव फोर्सेस है, और जो टाइप ऑफ इंटरैक्टिव फोर्सेस है ना दैट विल बी द अट्रैक्टिव इन नेचर. दैट इज वाई जो इसका वॉल्यूम है वो रिड्यूस हुआ है. दैट इज ओनली पॉसिबल जब आप ये मान के चलो कि अंदर जो गैसेस सिस्टम है उसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना उनके बीच में जो फोर्स है दैट फोर्स इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है देन द आइडियल स्टेट. तो मीन्स जब V ऑब्जर्व्ड कम होगा V आइडियल ज़्यादा होगा. तो दिस ऑब्वियस दैट विल बी लेस देन 1. एट द सेम टाइम जो पार्ट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन होगी दैट विल बी अट्रैक्टिव, दैट विल बी द अट्रैक्शन. अब रिपल्शन भी होती है बट attraction will be the dominant factor. So the part D will be the answer for this question. आगे चलते हैं. In van der Waals equation at constant temperature 300 Kelvin if A is 1.4 atm liters square, this is actually here liters square per mole, V हमारे पास दिया गया है, N दिया गया है, then what is the pressure of the gas? अब van der Waals equation हम जानते हैं P plus AM square divided by V square. V minus NB is equal to NRNT. Now, अब प्रेशर तो हमें पता है कि प्रेशर कितना है. नो, A हमें पता है, V हमें पता है, N हमें पता है. अब हमने निकालना क्या है डेट इज प्रेशर, और टेम्परेचर भी हमें पता है वो है 300 केल्विन के बराबर. तो कैसे करेंगे हम,
अब बी का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो मॉडरेट रेंज लेंगे हम, और मॉडरेट रेंज पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पी प्लस ए। अब एन स्क्वायर के बदले बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 1, तो ये कट हो जाएगा, इट विल बी द वी स्क्वायर, इट विल बी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब एन बी कैंसिल, इसके बदले लिखेंगे आर इंटू टी। नाउ अब पी हमने निकालना है, और ए का वैल्यू दिया है 1.4 लीटर एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम दिया गया है 100 ml। अब 100 ml को हम कन्वर्ट करेंगे लीटर्स में, इट विल बी 0.1 लीटर। तो यहाँ पे आएगा 0.1 लीटर इंटू वी है 0.1 लीटर इंटू आर 0.0821 क्योंकि लीटर एटमॉस्फेयर दिया गया है, इंटू टी टेम्परेचर है 300 केल्विन। नाउ इसको आगे सॉल्व आप घर में भी कर सकते हो, या अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे। इट विल बी पी इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर, इट विल बी पी, दिस विल बी पी मल्टीप्लाइड बाई 0.1 लीटर प्लस इट विल बी 1.4 डिवाइडेड बाई 0.1 लीटर क्योंकि एक और एक कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.0821 इंटू 300 केल्विन, 821 इंटू 300 केल्विन। अब आप ये कैलकुलेशन घर में करोगे, ये मैंने दिखाया कि मेथड कैसे यूज़ करना है आपको, और इसका जो आता है डेट इज़ नियर अबाउट 106 ATM, ये इसका आंसर आएगा। ये आप कर सकते हो यहाँ पे भी और घर में भी कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोज्ड कंटेनर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 गैसेस। हमारे पास 2 गैसेस हैं जिसके इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है x एंड y, मतलब nx इज इक्वल टू ny। इनके जो मोल्स है ना वो बराबर है, वो हमने लिए हैं n के बराबर। एट ए टोटल प्रेशर ऑफ 710 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, पीटी कितना है इस टाइम 710 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इफ गैस एक्स इज रिमूव फ्रॉम द मिक्सचर द प्रेशर विल बी, ऑब्वियस सी बात है अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है तो जो पी टोटल होता पहले जो 710 के बराबर है ना वो होता n1 nx प्लस ny आर टी डिवाइडेड बाई वी मिक्स, इसके बराबर होता। लेकिन अब जब आप यहाँ पे मोल्स निकाल रहे हो, अभी 710 था, ये किसकी वजह से nx ny दोनों n के बराबर है, तो हम लिखते ट्वाइस n आर टी डिवाइडेड बाई वी मिक्स। लेकिन अब अगर हमने एक को बाहर निकाला, इफ गैस एक्स इज रिमूव्ड, तो ऑब्वियसली बात है जो टोटल प्रेशर आएगा ना वो वाई की वजह से आएगा, तो जो वहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगी वो ड्यू टू द कोलिजन ऑफ वाई मॉलिक्यूल्स ऑनली होगा। सो P2 विल बी ny आर टी डिवाइडेड बाई वी मिक्स, और ny के बदले हम n लिख सकते हैं, इट विल बी n आर टी डिवाइडेड बाई वी मिक्स, ये आएगा P का वैल्यू। अब ये P टोटल बनेगा तब जब आप गैस बाहर निकाल रहे हो, और ये P टोटल तब है जब आपके पास दोनों गैस कंटेनर में मौजूद है। तो ये है डबल लेंथ ऑफ दिस, तो इसको हम मान सकते हैं हाफ, क्योंकि हमें निकालना है तब जब आप गैस को बाहर निकालते हो, तो ऑब्वियसली उसका हाफ आएगा। सो बिकम्स डबल बिकम्स हाफ हियर, दिस विल बी द आंसर। आगे, which of the following expression represents the value and units of van der Waals constant। तो हमारे पास है an स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ये है एक्चुअली प्रेशर का वैल्यू, a है ये एक्चुअली ये जो a है ना दिस इज प्रेशर करेक्शन टर्म, ये प्रेशर टर्म ही है, और यहाँ पे ATM लिखते हैं हम इसका यूनिट, क्योंकि जब इक्वेट करनी होती है KTG एंड वैन डर वाल्स इक्वेशन, तब प्रेशर को हम प्रेशर टर्म ही ऐड करेंगे। दैट इज वाई दिस an स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर इज एक्चुअली द टर्म ऑफ प्रेशर। सो इट विल बी a इज इक्वल टू ATM इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, इट विल बी ATM एज सच। अब ATM मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ATM ही है, तो इट विल बी v स्क्वायर, इसको लीटर स्क्वायर मान लो, दिस विल बी द मोल स्क्वायर, इट विल बी ATM इंटू लीटर स्क्वायर मोल, तो ये आएगा इसका आंसर an स्क्वायर। अब इस ATM के बदले हम P भी लिख सकते हैं एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो यहाँ पे P आएगा। सो P इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, सो P इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ A, एंड जो इसका जो यूनिट आएगा इट विल बी ATM लीटर स्क्वायर एंड पर स्क्वायर मोल। नाउ this will be the answer of this question. So moving to the next question, at identical temperature and pressure the rate of diffusion of the hydrogen gas is 3 times rate of hydrocarbon having molecular formula this, what is the value of n।
तो इट विल बी रेट ऑफ H2। इससे पहले भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया है। इट विल बी रेट ऑफ हाइड्रोकार्बन, दिस विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसकी जनरल फार्मूला दी गई है CnH2n-2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा Cn, इट विल बी n into 12 plus 2n-2 into 1. This will be the molecular mass of hydrocarbon divided by molecular mass of H2. H2 that will be 2. Now इसको रब करते हैं। अब ये दिया गया है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 है that is 3√3 times रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोकार्बन। मीन्स हम यहाँ पे रेट ऑफ H2 के बदले लिख सकते हैं 3√3 रेट ऑफ हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हाइड्रोकार्बन। कैंसिल कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 12n प्लस 2n-2, इट विल बी 14n-2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आएगा। तो इसको रब करते हैं। इट विल बी 3√3 डिवाइडेड बाय 3√3 इज इक्वल टू 14n-2 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन ये अंडर रूट में। अब अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड से, तो स्क्वायरिंग से पहले हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस अंडर रूट को यहाँ पे लेंगे। इट विल बी 3√3 इंटू √2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 14n-2। अब यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर लो, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर लो, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर आएगा 9, √3 का होल स्क्वायर आएगा 3 ही, इंटू √2 का होल स्क्वायर आएगा 2 इज इक्वल टू 14n-2। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 14n-2। नाउ 9 3 दैट विल बी 27 इंटू 2, इट विल बी 54। अब इस -2 को यहाँ पे लो, इट विल बी 56। तो यहाँ पे करेंगे 56 is equal to 14n, so n will be 56 upon 14, it will be 4. So the value of n will be 4. Moving to the next question. The density of a gas A, is three times the rate of density of gas B. ये हमारे पास है as per the given condition. At the same temperature, the molecular weight of gas B, MB, is equal to twice of the rate of A, MA. What will be the ratio of the pressures acting on B on A? तो हमें PB, PA का रेशियो निकालना है। अब कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? सिंपल, हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू DA, हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ A, मॉलिक्यूलर मास ऑफ A डिवाइडेड बाय R इंटू T। टेम्परेचर दोनों का सेम है। एंड DB लिख सकते हैं PB MB डिवाइडेड बाय RT। अब इस DA और DA के बदले लिख सकते हैं हम 3 times DB, और इस DB के बदले लिखेंगे DB as such, सॉरी, DB will be equal to PB MB R into T, यहाँ पे भी होगा R into T। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस DA के बदले लिख सकते हैं हम 3 times DB। अब DB रहेगा नीचे एज सच इज इक्वल टू PA, जो हमने रेशियो में कैलकुलेट करना है, MA मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ B दिया गया है ट्वाइस MA, तो हम लिखेंगे यहाँ पे MA एज सच डिवाइडेड बाय RT और R इंटू T PB। अब MB मॉलिक्यूलर मास के बदले लिखेंगे हम ट्वाइस MA और RT विल बी एज सच। अब इस RT को और RT को करेंगे कैंसिल, सो क्या आएगा, it will be PA MA divided by PB into twice MA। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं इस MA और MA को कैंसिल, इस DB को कैंसिल, तो आएगा 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू PA डिवाइडेड बाई ट्वाइस PB। अब इस 2 को यहाँ पे लो, इट विल बी 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू PA डिवाइडेड बाई PB। अब इसी का रेशियो उल्टा लो, क्योंकि हमें चाहे PB इज टू PA, तो ये उल्टा आएगा, तो आंसर विल बी 1:6, यानी कि 1/6। तो डी पार्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
The compressibility factor for 1 mole of a van der Waals gas at 0 degree Celsius and 100 atmospheric pressure is 10 to be 0.5. Means हमारे पास है Z that is equal to PV divided by nRT. अब ये तो given है कि for 1 mole तो it will be PV divided by RT. ये Z का वैल्यू दिया गया है 0.5 के बराबर, 0.5 के बराबर। एक सेकंड, थोड़ा मोटा लिख रहा है। तो Z इज इक्वल टू पीवी डिवाइडेड बाय एनआरटी, एन हमें पता है 1 मोल है, इट विल बी पीवी डिवाइडेड बाय आरटी। तो Z का वैल्यू दिया गया है 0.5 यहाँ पे। नाउ हमें क्या करना है, एज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, तो बी को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। कैलकुलेट द वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर एटमॉस्फेयर। ये हम कैसे निकालेंगे? सिंपल, यहाँ पे हम वी का वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब लिखेंगे ना पी प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी एज सच, जो हमने निकालना है कैलकुलेट द वैन डर वाल्स, नहीं ए हमने निकालना है, पी का वैल्यू गिवन है, प्लस ए, अब एन के बदले 1 लिखेंगे तो खत्म, क्योंकि एन दिया गया है 1 मोल, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू वी, एन के बदले 1 और बी को हमने निगलेक्ट करना है, तो वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ पे लिखेंगे आर टी। अब यहाँ पी का वैल्यू तो हमें पता है, वो तो क्वेश्चन में दिया गया है, एंड दैट इज गिवन टू 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट द सेम टाइम हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि P हमें पता है, टेम्परेचर हमें पता है, एंड टेम्परेचर इज गिवन 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 298 केल्विन, और R का वैल्यू हम यूज करेंगे एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दैट विल बी लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और हम निकाल सकते हैं V। इसी V को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे और आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम V निकालेंगे इट विल बी 0.5 RT, इस RT को यहाँ पे शिफ्ट कर लो, डिवाइडेड बाई P, इस P को यहाँ पे लो, तो V इक्वल 0.5 इंटू R 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273.15 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। नाउ डिवाइडेड बाई पी। अब प्रेशर कितना है? प्रेशर दिया गया है 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो V का वैल्यू कितना आएगा? दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस विल बी 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो इट विल बी 11.2। 11.2 को डिवाइड बाई कर लो 100 से, इट विल बी 0.112, हाँ 0.112 लीटर्स आएगा वॉल्यूम का वैल्यू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी वॉल्यूम के वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर लो, इट विल बी P प्रेशर, जिसका आपको पता है वैल्यू दैट इज 100 ATM, प्लस ए हमने निकालना है। अब वी स्क्वायर के बदले लिखेंगे हम 0.112 स्क्वायर इंटू वी 0.112 इंटू आर इंटू टी, दैट विल बी 0.0821 into 273. This multiplied by this will be 22.4. Now, अब हम इसे आगे लेते हैं, तो इसको कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे करते हैं, ये आपको दिखेगा। तो this 100 into 0.11, 100 into 0.112 लीटर प्लस A as such divided by ये और ये कैंसिल हो जाएगा, it will be 0.112 is equal to 22.4. Now 100 into 0.112 it will be something around 10 point something. अब इस 10 point something को आप वहाँ पे ले जाओगे तो यहाँ से आएगा 22.4 माइनस 10 point something, ये आप करोगे घर में, तो यहाँ पे आएगा कुछ वैल्यू, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 0.112 से और आपको निकलेगा A का आंसर। और ये जो आता है दिस इज समथिंग अराउंड 1.253, ये आप क्रॉस चेक कर लेना घर में। सो क्वेश्चन नंबर 65 इज द रिएक्शन ऑफ हेवी वाटर आर स्लो, द रीजन इज। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम नॉर्मल वाटर की बात करें दैट इज OH, और अगर हम हेवी वाटर की बात करेंगे तो बॉन्ड विल बी द OD। अब इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ OH। तो यहाँ पे यही रीज़न है जिसकी वजह से हेवी वाटर की जो रिएक्शंस होती है वो होती है स्लो। हम लिखेंगे हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ DO। तो आगे जाएंगे, कैलगॉन इज एन इंडस्ट्रियल नेम गिवन टू, ये देते हैं हम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को। तो आगे जाएंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर
क्लोज चेन स्ट्रक्चर, क्लोज्ड बुक टाइप स्ट्रक्चर, हाफ ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट्स एक्चुअली द हाफ ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, अब इसको हम डिटेल में नहीं लेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हाफ ओपन बुक ही होता है। तो आगे जाएंगे, फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज हाइड्रोजन इट रिजेंबल्स हैलोजन इन सम प्रॉपर्टी, सही बात है। सेकंड वन, इट रिजेंबल्स अल्कली मेटल्स इन सम प्रॉपर्टी, ये भी सही है। इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन अ फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियड, नहीं, इसको कर सकते हैं। तो दिस विल बी द आंसर। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है एज पर द क्वेश्चन। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, आसान क्वेश्चन है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होता है, तो पार्ट ए विल बी द आंसर। आगे जाएंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स बाय 2s 2s 2p 2p एंड 2p 2s ओवरलैपिंग हैज ऑर्डर। ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देखोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 2 2 एंड 2, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम। तो हम लिख सकते हैं जो साइज है इट इज ऑलमोस्ट सेम। अब इसके बाद जो ओवरलैपिंग है ना, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है साइज के बाद डायरेक्शनल नेचर पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्शनल नेचर, क्योंकि साइज तो सबका ऑलमोस्ट सेम है। अब डायरेक्शनल नेचर की बात करेंगे तो p ऑर्बिटल इज मोर डायरेक्शनल देन s, तो जो pp ओवरलैपिंग होगी वो सबसे स्ट्रांग होगी, उसके बाद ps एंड फॉलोड बाय s एंड s। तो आंसर विल बी दिस वन। तो आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 71, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ये s और s ओवरलैपिंग की वजह से भी बनेगा, तो s सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर हमारे पास s ऑर्बिटल होगा और साथ में p ऑर्बिटल होगा, ऐसे अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बन सकता है sp ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड। एट द सेम टाइम अगर हमारे पास ऐसे 2 p ऑर्बिटल्स होंगे अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड बनेगा डेट विद द pp बॉन्ड। और भी तरीके हैं जहाँ से बनते हैं सिग्मा बॉन्ड्स, लेकिन अभी हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं यहाँ तक एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो answer will be SS, SP or PP orbitals along internuclear axis. Done. Question number 72 will be the AsF5 molecule is trigonal bipyramidal. अगर trigonal bipyramidal है तो इसकी hybridization आएगी sp3d. The hybrid orbital is used by the AS atoms for bonding R. कौन कौन सा है, देखो कुछ जब सिंगल स्कीम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाती हर प्रॉपर्टीज को, तब हम उन्हें ब्रेक करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन। तो उससे हम प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से सीखते हैं दिस AsF5 मॉलिक्यूल्स के लिए। और भी जो बाकी मॉलिक्यूल्स है जिनके लिए सिंगल हाइब्रिडेशन स्कीम नहीं करती है डिफाइन, ऑल द प्रॉपर्टीज जो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के एसोसिएटेड होगी, उस टाइम हम ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हैं। एंड फॉर दिस AsF5 मॉलिक्यूल sp3d सिंगल हाइब्रिडेशन स्कीम, इसका जो ग्रुप हाइब्रिडेशन स्कीम है दैट विल बी sp2 प्लस pd। अब जो sp2 है ये प्लेनर में होता है, आपके पास होगा as ऐसे लाइक दिस, तो ये एक प्लेन में आएगा। ऑब्वियसली ये जो प्लेन होगा इट विल बी xy, और यहाँ पे आपका जो PD आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास 2 F एंड F, एक का होगा PZ और दूसरे का होगा DZ²। तो इसका जो आंसर आएगा डेट विल बी S PX PY PZ एंड DZ²। क्यों, क्योंकि प्लान बनाने में आपका एक S जाएगा क्योंकि sp2 है, और एक PX जाएगा और एक PY जाएगा बिकॉज XY प्लेन आपने चूज किया है। अब इसके बाद DZ² अलॉन्ग द एक्सिस, एक आपका PZ आएगा और दूसरा आएगा DZ²। नाउ दिस विल बी द आंसर। आगे जाएंगे, molecular shapes of SF4 and CF4 XeF4 are same different 201 lone pairs of electrons respectively। अगर हम बात करेंगे SF4 की, तो SF4 की अगर हम बात करेंगे, अगर हम SF4 की बात करेंगे, इसमें आएंगे 7 4 28 प्लस 6 इट विल बी 34 अपॉन 8 इट विल बी 8 4 32 प्लस 1 लून पेयर इसमें आएगा। नाउ इसके बाद हमारे पास है CF4। अब CF4 में क्या करेंगे, 7 4 28 प्लस 4 इट विल बी 32 अपॉन 8। ये निकालने का तरीका आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इट विल बी 8 4 प्लस 0 लून पेयर, इसमें कोई लून पेयर है नहीं। इसके बाद हम देखेंगे XeF4 का,
तो इसमें आएगा 7 4 28 प्लस जीनॉन के लिए हम यूज़ करते हैं 8, तो इट विल बी 18 प्लस 8 इट विल बी 36 अपॉन 8, इट विल बी 84 प्लस 2 लोन पेयर्स आएंगे इसमें। तो ऑब्वियसली बात है लोन पेयर आर 102, तो 102 कॉम्बिनेशन इज दिस। अब डिफरेंट है कि सेम है इनकी शेप्स, ऑब्वियसली डिफरेंट आएगी क्योंकि यहाँ पे आएगा 4 + 1 स्टेरिक नंबर 5 आएगा, तो इट विल बी sp3d, तो यहाँ पे आएगा sp3 क्योंकि 4 आता है स्टेरिक नंबर 4 + 0, और यहाँ पे आता है 4 + 2 6, दैट विल बी sp3d2। अब इसमें 2 लून पेयर है और इसमें 1 लून पेयर है, इसमें कोई लून पेयर नहीं, तो शेप्स भी यहाँ डिस्टर्ब होगी, तो कोई शेप इनकी ना इनकी शेप सेम नहीं होगी, रादर डिफरेंट होगी, और लोन पेयर कैलकुलेशन हमने निकाली। सो द आंसर विल बी द डी फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 74। Now question number 74, select the correct matching XEF4, XEF2, XEO3, XEO2, XEOF2। अगर इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए 8, इसके लिए 6, इसके लिए 14, इट विल बी 28, तो 28 डिवाइडेड बाई 8 इट विल बी 8 3 are 24, तो 2 लून पेयर इस पे आएंगे, तो इसकी होगी एस स्टेरिक नंबर 5, 3 + 2 5, तो sp3d इसकी होगी हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और आपके पास 2 लून पेयर्स है, तो ऑब्वियसली बात टी शेप आएगा, पहले में सीसा दूसरे में टी शेप, तो आपका जो XEOF2 है यानी कि d इसके लिए आना चाहिए, इसके लिए आना चाहिए टी शेप यानी कि 2, तो d के लिए 2 यहाँ पे है और d के लिए 2 यहाँ पे है। अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, डन। यहाँ पे 3 1 1, अब b और c हम करेंगे ये। अब अगर हमारे पास है, अब अगर हमारे पास c है, मान लो c है x, पहले हमने d देखा, अब अगर हम c पार्ट देखेंगे डेट विल बी XEO3। अब XE यानी कि जीनॉन के लिए हम यूज करेंगे 8 और ऑक्सीजन के लिए हम यूज करेंगे 6 × 3 डेट विल बी 18, 18 + 8 विल बी 26 अपॉन 8, इट विल बी 8, इट विल बी 3 + 1 लोन पेयर इसमें आएगा, तो sp3 आएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर, इसकी जो शेप आएगी डेट विल बी द पायरामिडल। अब जो C है ना उसके लिए आएगा पायरामिडल XEO3 के लिए, तो XEO3 के लिए 1 आएगा यहाँ पे, तो XEOF2 का हमने देखा, तो D के लिए 1 आना चाहिए, सॉरी C के लिए 1 आना चाहिए, तो C के लिए 1 ये है, तो ऑब्वियसली ये होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे C3 है, तो A पार्ट विल बी द आंसर। तो आगे जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 75 पे। द ज़ीनॉन कंपाउंड दैट आर आइसोस्ट्रक्चरल विद IBr2 नेगेटिव एंड BrO3 नेगेटिव रेस्पेक्टिवली आर। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे IBr2 नेगेटिव एंड BrO3 नेगेटिव में हम पहले सिमिलर स्ट्रक्चर्स देखते हैं इनके कैसे आएंगे। IBr2 दैट विल बी 7, इट विल बी 21 + 22 अपॉन 8, तो आएगा 2, प्लस आएंगे इसमें 3 लून पेयर्स, तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी डेट विल बी sp3d, क्योंकि इसका स्टेरिक नंबर जो हमें यहाँ से मिलेगा 3 + 2 डेट विल बी द 5। अब अगर स्टेरिक नंबर 5 मिला तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी डेट विल बी sp3d, ये इसकी आएगी हाइब्रिडाइजेशन। नाउ अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये है और इसमें लून पेयर 3 है, तो ऑब्वियसली बात जो इसका जो स्ट्रक्चर शेप होगी डेट विल बी द लीनियर, राइट। अब BrO3 नेगेटिव की बात करेंगे, ब्रोमीन 7 प्लस ऑक्सीजन के 18 + 1 आएगा 19 + 7 डेट विल बी 26 अपॉन 8 आएगा 3 + 1 लोन पेयर, तो sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी एंड विद 1 लोन पेयर, तो इसकी जो शेप आएगी डेट विल बी द पायरामिडल। अब आउट ऑफ दिस हमें देखना है कहाँ कहाँ पे ये होता है कोरिलेट, कोइंसाइड, तो लीनियर यहाँ पे है और यहाँ पे है पायरामिडल। हम डायरेक्टली ये ऐसा लिख सकते हैं, लीनियर यहाँ पे है, अब यहाँ पे पायरामिडल है, तो दिस विल बी द आंसर। आगे स्पीशीज हैविंग 0 डायपोल मोमेंट इज, सबसे पहले XEF4, तो इसके लिए 8 प्लस एक सेकेंड, हाँ 8 + 28 इट विल बी 36 अपॉन 8, इट विल बी 4 + 2 लोन पेयर, तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा इट विल बी sp3d 3 4 2,
क्योंकि इसका स्टीरिक नंबर आएगा डेट विल बी द 6, 4 + 2। अब अगर जो sp3d2 है स्क्वायर बाइपैरामिडल, लेकिन इसमें 2 लून पेयर्स हैं, तो स्क्वायर प्लानर पे हम जा सकते हैं लाइक दिस, एक लून पेयर यहाँ पे, दूसरा लून पेयर यहाँ पे, तो इसकी जो डायपोल मोमेंट आएगी डेट विल बी 0, क्योंकि ये लून पेयर डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगी, लून पेयर डायपोल मोमेंट का वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एफ, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बात खत्म। तो इसका वेक्टर ऐसे, इसका वेक्टर ऐसे, इसका वेक्टर ऐसे और इसका वेक्टर ऐसे, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 आएगा। इसका तो डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा और इसका भी नहीं आएगा। नाउ तो इसका जो आंसर आएगा डेट विल बी द ए। अब आगे जाएंगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डायपोल मोमेंट इज, देखो यहाँ पे है NF3 और यहाँ पे है NH2, जो दूर से ही नजर आ रहा है, ये हमने क्लास में भी किया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमारे पास अगर हम NH3 लेंगे, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है और यहाँ पे इसका लोन पेयर होता है, एट द सेम टाइम अगर हम लिखेंगे NF एंड F ऐसे, और इसका लोन पेयर यहाँ पे होता है, राइट। अब यहाँ मैं दूसरे कलर का पेन यूज करूंगा, यहाँ पे होगी डायपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का वेक्टर ऐसे होगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का वेक्टर ऐसे होगा नाउ, और ये लून पेयर डायपोल मोमेंट का वेक्टर होगा ऐसे। नाउ आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे रीइंफोर्स हो रहा है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर्स ऐसे आएंगे और यहाँ पे डायपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे आएगा, ये और ये कैंसल, और यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट आएगी डेट विल बी लेस देन द दिस, तो इसकी डायपोल मोमेंट होगी ज़्यादा देन NH3 की होगी ज़्यादा देन NF3, तो ऑब्वियसली NF3 इज लेस देन NH3, ये तो सही है। यहाँ NF3 इज लेस देन NH3, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे CH4 बीच में घुसा है, इसके लिए तो डायपोल मोमेंट 0 है, तो CH4 के लिए हम लिख सकते हैं ना, म्यू का जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद आएगा H2, ऑब्वियसली H2 की जो डायपोल मोमेंट होगी ना डेट विल बी द हाईएस्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे OH की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना डेट विल बी द लार्जर देन द NH देन द NF। अब इसका तो मैक्सिमम होगा H2O का, लेकिन वेट आई विल यूज अनदर कलर फॉर दिस। तो ऑब्वियसली बात है सबसे कम किसकी होगी, CH4 की, वो कहाँ पे है, वो तो पार्ट ए में है। इसके बाद NF3, हाँ वो तो हमने देखा, उसके बाद NH3, गुड, उसके बाद H2O, दिस विल बी द आंसर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 78, द नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन O2 नेगेटिव इज, तो इसमें हम लिखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, इसके बाद लिखेंगे हम सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद सिग्मा 2pz, इसके बाद लिखेंगे हम पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। यहाँ पे अगर आप देखोगे एनर्जी ऐसे होती है इंक्रीज, तो ये बराबर है और उसके बाद ये बराबर है। नाउ इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं O2 नेगेटिव में, O2 नेगेटिव में अगर आप देखोगे 16 + 1 8 8 16, तो आएंगे 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 17 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम बनेंगे इसमें, तो इट विल बी, अरे यार वेट 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 वेट, तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे 2 2 2 2, ये तो आए 8, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 8 है। इसके बाद यहाँ पे 10 12 14 15 16 17, तो 17 आए। अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन O2 नेगेटिव, एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमने निकालने हैं। अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे है एंटीबॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे एक, तो हो गए 2, तो यहाँ पे एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर हमसे पूछा जाता कैलकुलेट द नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इस एक को भी मिलाते तो 3 5 2 7 आते, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 2, ये एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, एंड दिस वन इज अनपेयर्ड, दिस इज नॉट पेयर्ड, तो इसको छोड़ते हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द पार्ट बी। कलर चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बॉर्न-हैबर साइकिल इज मेनली यूज्ड टू डिटरमाइन, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मेनली हम इसे यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द लैटिस एनर्जी, राइट। इसके बाद आगे जाएंगे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल क्लोराइड इन, देखो ये भी हमने किया है। ये कैसे करेंगे हम, यहां पे अगर आप देखोगे ना BeCl2, आप देखोगे MgCl2, आप देखोगे CaCl2 और आप देखोगे SrCl2।
आउट ऑफ दीज 4 हर जगह आपका जो ना एनाइन है ना वो सेम है, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन। अब हमने देखना है कोवेलेंट कैरेक्टर। हम हेजर्स रूल को यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें ना जो 2 फैक्टर्स है, एक तो कैटाइन रिलेटेड फैक्टर है, दूसरा एनाइन रिलेटेड फैक्टर है। अभी एनाइन रिलेटेड फैक्टर हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एनाइन जो है ना चारों केसेस में सेम है, बट कैटाइन डिफरेंट है। पहले में जो कैटाइन है ना डेट इज Be+2, दूसरे में Mg+2, तीसरे में कैल्शियम +2 एंड फोर्थ में स्ट्रॉन्शियम +2। ये हमारे पास है कैटाइंस, राइट। अब डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, जो साइज होगा वो हो जाएगा इंक्रीज। और हम जानते हैं जो पोलराइजेशन है, जब हम मेटल रिलेटेड कैटाइन रिलेटेड फैक्टर्स पढ़ते हैं पोलराइजेशन के लिए, पोलराइजेशन जो है, ये पोलराइजेशन जो है, दिस इज एक्चुअली इनडायरेक्टली रिलेशनशिप विद द कोवेलेंट कैरेक्टर, ऐसा तो है। अब जब हम पोलराइजेशन में देखेंगे मेटल रिलेटेड फैक्टर, क्यों देखेंगे मेटल रिलेटेड फैक्टर? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशिएटिंग है डेट इज मेटल। एनाइन हम लेंगे नहीं क्योंकि एनाइन चारों केसेस में है सेम। अब जब यहाँ पे है मेटल रिलेटेड फैक्टर, अब मेटल रिलेटेड फैक्टर में क्या करेंगे हम? मेटल रिलेटेड फैक्टर में हम जाएंगे, हमें पता है ये जो पोलराइजेशन है इन मेटल रिलेटेड फैक्टर, ये पोलराइजेशन जो है is actually directly proportional to the charge of cation and inversely proportional to the size of cation. अब सुनो, अब सबसे छोटा साइज किसका है? Be+2, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे आपके पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। डाउन द ग्रुप जो कैटाइनिक साइज है वो बढ़ जाएगा और सबसे कम साइज कहाँ पे होगा? Be+2 का। और जब इसका साइज ऑफ द कैटाइन कम होगा Be+2 का, और एट द सेम टाइम इसकी जो पोलराइजेशन होगी ना डेट विल बी द ग्रेटर। अब अगर पोलराइजेशन ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा है। तो BeCl2 में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, BeCl2 का सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, उसके बाद होगा MgCl2, उसके बाद CaCl2, उसके बाद SrCl2। क्यों? डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द कैटाइन जो है वो इंक्रीज होता है और इनकी जो पोलराइजेशन है वो डिक्रीज होगी, राइट। अब जिसका साइज कम है उसकी पोलराइजेशन सबसे ज्यादा, तो इसीलिए उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो सी पार्ट विल बी द आंसर। आगे चलते हैं। Now, heat of sublimation of Na x joule, ionization energy Na y joule, bond dissociation energy of Cl2 A joule, electron gain enthalpy of Cl is minus B joule, enthalpy of formation of NaCl is minus C joule, then what will be the lattice energy of NaCl? तो इसको हम ऐसे करेंगे, सुनो, हमारे पास है, होता है ये बोर्न-हैबर साइकिल का है, हमारे पास है Na सॉलिड, इसके बाद हमारे पास है 1/2 of Cl2 गैस, हमें बनाना है 1 मोल ऑफ NaCl। तो इसके लिए जो हम लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सबसे पहले हम इसको करते हैं गैसियस स्टेट में कन्वर्ट, इसके बाद यहाँ से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन। अब जाहिर सी बात है इसमें तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगेगी, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी, इसके बाद अगर हम यहाँ जाएंगे तो 1/2 ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये हो जाएगा क्लोरीन गैस। उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी, तो इट विल बिकम Cl नेगेटिव गैस। नाउ अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लैटिस एनर्जी और यहाँ पे आएगा NaCl, इसकी फॉर्मेशन होगी। अब ये हमारे पास है साइकिल, इसी साइकिल को यूज करेंगे। हमारे पास दिया गया इस एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का वैल्यू दिया गया है x। अब आयनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू दिया गया है दैट इज y, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी a, इट विल बी देन a/2 सीधे। अब यहां पे है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बदले हम लिखेंगे -b, और यहां पे जो NaCl लैटिस एनर्जी है ये हमने करनी है कैलकुलेट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है -c जूल। तो
जाहिर सी बात है ये हेसेस लॉ से फॉलो होता है, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दिस इज इक्वल टू सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब यहाँ पे 1/2 हम लिखेंगे क्योंकि 1/2 यहाँ पे है, और यहाँ पे लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी। अब ये जो 3 प्रोसेसेस हैं ना, ये होती है एंडोथर्मिक, और ये वाली जो 2 है ये होती है एक्सोथर्मिक। क्लियर? नाउ आगे जाएंगे। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू हमें दिया गया है माइनस टाइम्स सी जूल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस टाइम्स सी। अब जूल को हम कंसिडर करके रखेंगे दिमाग में, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, कितना दिया गया है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन x, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कितना है y, 1/2 ऑफ एंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू कितना है, दैट इज a जूल इनटू a आएगा यहाँ पे, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना है -b, तो यहाँ पे -b यूज करेंगे, प्लस लैटिस एनर्जी ये हमने निकालनी है, तो लैटिस एनर्जी ऐसे रखेंगे। अब इस लैटिस एनर्जी को यहीं पे रखो, इस सब को लो यहाँ पे इस साइड में, तो यहाँ पे फॉलो क्या होगा, यहाँ पे फॉलो क्या होगा, लैटिस एनर्जी विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो किसके बराबर -c। अब ये वाला प्लस x यहाँ पे आ रहा है -x, प्लस y इधर आएगा -y, और प्लस 1/2 a आएगा यहाँ पे -a/2, माइनस b आएगा यहाँ पे प्लस b। अब लैटिस एनर्जी को ऐसे ही लिखो, b को लिखो पहले, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिखो, इट विल बी c प्लस x प्लस y प्लस a/2, दिस विल बी द आंसर। b माइनस c प्लस x प्लस y प्लस a/2, दिस विल बी द आंसर। तो आगे जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2 नेगेटिव, O2 प्लस एंड O2 नेगेटिव। तो हमारे पास है O2, देखो एक ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ट्रिक है, ये थोड़े से मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होती है। 10 to 18, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 टाइम बचाने के लिए, अदरवाइज बाय कॉन्सेप्ट जाते। 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, तो 1 से स्टार्ट कर लो, 0.5 ऐड कर लो, 2 तक, 2.5, 3, अब नीचे आओ, 0.5 घटा लो 3 के बाद, तो 2, 1.5 एंड 1 से स्टार्ट 1 पे खत्म। तो आगे क्या करेंगे हम, अब इस O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स है, O2 नेगेटिव में 17 इलेक्ट्रॉन्स है, O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे है 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 2, और ये है O2 के रेस्पेक्ट में। क्लियर? इसके बाद 17 इलेक्ट्रॉन, 17 के लिए 1.5, एंड दिस इज O2 माइनस। नाउ इसके बाद O2 प्लस है, अब O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे O2 प्लस। इसके बाद आएगा O2 माइनस, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और वो आएगा यहाँ पे O2 माइनस। हमने क्या देखना है, डिक्रीजिंग और रफ स्टेबिलिटी। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। अब बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पे है, ये 4 तो यहाँ पे होते हैं इन्वॉल्व। अब बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है 15 वाले के पास, जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, दैट इज O2 प्लस। तो O2 प्लस होगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फॉलोड बाय बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2, जो किस में है O2। उसके बाद 1.5 है, वो किस में है O2 माइनस, एंड उसके बाद O2 माइनस, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर इतना है। तो पहले में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया O2 प्लस में, दैट इज 2.5। अब O2 में कितना आया 2, यहाँ पे 1.5, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आप मैच कर लो यहाँ से, O2 प्लस यहाँ पे और कहीं पे है ही नहीं, उसके बाद O2, उसके बाद O2 नेगेटिव, उसके बाद O2 नेगेटिव, दिस विल बी द आंसर। गो टू द नेक्स्ट वन। नाउ मैच द बिलो करेक्ट टर्म्स। यहाँ पे ये जो स्पीशीज है ना, इनका एटॉमिक नंबर सेम, और इनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। इसका मतलब जो 1 है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके साथ मैच। तो हमारा जो 1 है इसका आएगा ए पार्ट, क्योंकि आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। अगेन अब यहाँ पे है H13, H23, अब इनका मास नंबर सेम है और इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। ऑब्वियसली ये इसको हम मैच करेंगे आइसोबार्स के साथ। तो जो हमारा सेकंड आएगा
इसको हम डी के साथ मैचअप करेंगे। इसके बाद हमारे पास है जर्मेनियम 7632, 7733। अब इसमें अगर हम देखेंगे 7632 में, अब अगर हम A माइनस Z देखेंगे यहाँ पे, इट विल बी 76 माइनस 32 और यहाँ पे आएगा 77 डिवाइड बाई 33। अब यहाँ पे आएगा 44 और यहाँ पे आएगा 44। अब इनमें A माइनस Z इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे सेम है इन दोनों केसेस में। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है तो इसको हम यूज़ करेंगे किसके साथ, आइसोटोन्स के साथ। इसके बाद हमारे पास यूरेनियम 23592 है एंड 23190 है। अब अगर हम इसमें A माइनस 2Z की कैलकुलेशन करेंगे, इट विल बी A दैट इज इक्वल टू 235 माइनस टाइम्स 2 इन व्हाट इज Z, Z इसके लिए 92 है। इट विल बी 235 माइनस, एक सेकेंड, ये आएगा 235 माइनस 184। अब यहाँ पे देखेंगे इस वाले केस में A माइनस 2Z वो आएगा, इसका एटॉमिक मास 231 एंड 2Z आएगा, इसका एटॉमिक नंबर 90 है तो इसका जो 2Z आएगा डेट विल बी 180। अब यहाँ पे 180 लिखेंगे हम जल्दी जल्दी, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 5 तो ख़त्म, और यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 5 तो ख़त्म। तो A माइनस Z इज सेम, तो ये आइसोडायफर कहलाएंगे। IV के लिए हम C लिखेंगे, तो यहाँ पे IV के लिए C लिखो। और थर्ड के लिए हमने क्या मैचअप किया था, थर्ड के लिए हमने मैचअप किया था आइसोटोन्स यानी कि B। अब यहाँ पे मैचअप कर लो, 1A क्लियर, सेकेंड D क्लियर, थर्ड B क्लियर, IVC क्लियर। अब यहाँ पे है कहीं पे D, यहाँ पे D कैंसिल, यहाँ पे D कैंसिल, ना तो फर्स्ट वन विल बी द आंसर। अब यहाँ पे H11, 12, 13 नंबर, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, तो ऑब्वियसली आइसोटोप्स ही होंगे। तो V का भी आएगा A, तो यहाँ V का भी है A, तो A पार्ट विल बी द आंसर। आगे जाएंगे। द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 2 rubidium isotopes of atomic weights 85 and 87 are 75% and 25% respectively. The average atomic weight of the rubidium is, हम एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, 3 फॉर्मूला से निकालते हैं, लेकिन हियर द परसेंटेज इज गिवन, इट विल बी P1 A1 प्लस P2 A2 अपॉन 100। सो व्हाट्स P1? P1 is here 75% और इसका जो एटॉमिक वेट दिया है डेट इज 85 प्लस व्हाट्स P2? P2 इज 25%। अब इसका जो एटॉमिक वेट दिया गया है डेट इज 87 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको आप घर में कर सकते हो इस कैलकुलेशन को, और इसका जो आंसर आता है डेट इज 85.5। इतना ही करना है, ये इसका एवरेज एटॉमिक वेट कहलाएगा जो आप पीरियोडिक टेबल में यूज कर सकते हो। नाउ the ratio of specific charge of a proton and an alpha particle is, specific charge हम कैसे निकालते हैं? specific charge हम निकालते हैं E by M रेशियो से, वो होता है E by M रेशियो, सॉरी। अब E by M अगर हम प्रोटॉन का लिखेंगे एंड E by M अल्फा पार्टिकल का लिखेंगे, तो अल्फा पार्टिकल हमारे पास डबली चार्ज हीलियम विद एटॉमिक नंबर 2 एंड एटॉमिक मास 4 है, तो इसके बदले प्रोटॉन के में चार्ज जो है दैट इज +1 यूनिट, तो इसको E ही रखो, M के बदले M ही रखो क्योंकि 1 यूनिट मास भी है, ये प्रोटॉन का है, एंड इसका आएगा ट्वाइस E डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स M क्योंकि इसका मास इतना है। अब E कैंसिल, M कैंसिल, इट विल बी 4/2 दैट विल बी 2/1, तो आएगा 2:1 आएगा आंसर, 2:1 will be the answer. Now moving to the question number 86. In nitrogen 714, if the mass attributed to electrons were doubled and the mass attributed to the protons were halved, the atomic mass would become approximately. तो इसमें हमने क्या करना है, परसेंटेज दी गई है नीचे, आपको देखना है क्या होगा। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप देखो आइडियल केस। आइडियल केस हमारे पास है नाइट्रोजन 714, इलेक्ट्रॉन्स का मास हम कंसीडर करेंगे नहीं, तो जो इसका 14 है ना, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 इसमें है, तो इसका इतना मास बनेगा न्यूट्रॉन्स का, और प्रोटॉन्स का बनेगा 7 AMU, एक का 1 AMU, 7 का 7 AMU, तो आएगा टोटल में 14। तो ये आपके पास है आइडियल केस। अब हमसे पूछा गया है अगर ऐसा होगा क्या होगा, वो हमारा बनेगा हाइपोथेटिकल केस। अब इस हाइपोथेटिकल केस में क्या होगा, इस हाइपोथेटिकल केस में होगा यूं, अगर आप एट्रीब्यूट करोगे इलेक्ट्रॉन्स को उनका मास डबल, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसीडर करेंगे नहीं, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, उसको मास में कंसीडर करेंगे ही नहीं, तो इसको हम करते हैं स्किप।
इसको हम स्किप करते हैं। एंड द मास एट्रीब्यूट टू प्रोटॉन्स वर हाउड। अब यहाँ प्रोटॉन्स के लिए आपने मास को किया है आधा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो हाइपोथेटिकल केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास पहले 7 थे, अभी भी 7 थे, तो इनका एटॉमिक मास हो गया 7 AMU। नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने 7, लेकिन आपने एक प्रोटॉन को 1 यूनिट मास दिया था, अब दिया है आधा, इट विल बी 3.5, तो टोटल में आएगा 7 + 3.5, इट विल बी 10.5। ये आपका आया हाइपोथेटिकल में एटॉमिक मास। नाउ अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ना परसेंटेज भी दी गई है, यहाँ पे बोला गया है आधा हुआ है, डबल होगा या सेम रहेगा, तो इसके लिए हम देखेंगे परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज कैसे आएगा, डेट विल बी डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम इनिशियल इंटू 100। अब डेल्टा एम क्या है, चेंज इन मास। अब इनिशियली आपके पास डेट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, अब मास तो ऐसा नहीं होगा ना, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे 3.5, दिस इज द डिफरेंस। जब आपने एट्रीब्यूट किया हाफ mass to the proton, it will be initial mass that is 14 into 100। अब इसको कर लो, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली, रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस तो होगा ही क्योंकि यहाँ पे 10.5 आएगा, तो रिड्यूस होगा बाय 25%। इसका आंसर आएगा सी पार्ट। नाउ आगे जाएंगे, फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ 1 सेकंड थर्ड ऑर्बिट दैट इज v1 v2 v3 विल बी। जाहिर सी बात है हम वेलोसिटी लिखते हैं 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे v1 है, ओ सॉरी यहाँ पे z/n सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे v1 is to v2 is to v3 निकालना है, सो v1 विल बी 2.188 इंटू 10⁸ z। अब हाइड्रोजन के लिए 1/n फर्स्ट ऑर्बिट में, अब v2 आएगा 2.188 इंटू 10⁸ इंटू z1 डिवाइडेड बाई 2 सेकंड ऑर्बिट में, और v3 आएगा 2.188 इंटू 10⁸ इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 थर्ड ऑर्बिट में। नाउ अब v1 इज टू v2 इज टू v3, जब इसका रेशियो लोगे ना तो यहाँ पे चीज़ें ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा क्या 1 is to 1/2 is to 1/3, तो ये इसका होगा आंसर। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। द फर्स्ट इमिशन लाइन इन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इन द बाल्मर सीरीज विल हैव वेव नंबर। अब वेव नंबर कैसे लिखते हैं ना 1/λ RH, रिजल्ट को रहने दो इक्वल टू 1 क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है, इट विल बी 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर। अब बाल्मर सीरीज है, n1 विल बी इक्वल टू 2 एंड n2 विल बी इक्वल टू 3 फॉर द फर्स्ट लाइन, जिसे आप H अल्फा भी बोल सकते हो पहली लाइन को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट विल बी न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RH एज सच, ये तो सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, RH divided by 1/2 square minus 1/3 square, it will be RH as such, it will be 1/4, 1/9, so RH will be as such, it will be 9 minus 4/36. Now, 9 4, that will be 5/36, it will be RH into 5 divided by 36, तो जो हमारा वेव नंबर आएगा that will be 5 डिवाइडेड बाई 36 इंटू RH, ये आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में, तो आंसर 5 डिवाइडेड बाई 36 सेंटीमीटर, दैट इज द ए पार्ट। आगे चलते हैं, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन n इज इक्वल टू 3l2 m+2। अब यहाँ पे इसने m का वैल्यू ना डेजिग्नेट किया है, इसको स्पेसिफाई किया है, तो जाहिर सी बात है ना ये एक ऑर्बिटल के लिए होगा। अब ये जो +2 है ना, it may be one among two orbitals, means चलो वहां नहीं जाते, तो ये एक, और जब यहाँ पे m का वैल्यू स्पेसिफाई किया गया है ना, तो ये एक ऑर्बिटल के लिए। अब हमारे पास है ना अभी n किसके बराबर है, n किसके बराबर है 3 के बराबर, और जो हमारा l है वो किसके बराबर है 2 के बराबर। एट द सेम टाइम m दिया गया है +2 के बराबर। अब n3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, l2 है तो 3d। अब d ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल है जिसके लिए m2 है +2, मीन्स यहाँ पे अगर हम लिखिए -2 -1 0 +1 +2। अब ये +2 है ना, अगर मैं इसे dxy मान लूँ और इसको dx² -y² मान लो, अमंग दीज टू ऑर्बिटल्स कोई एक होगा ही, तो एक ऑर्बिटल होगा।
तो यहाँ पे ए आएगा। तो आगे चलते हैं। नोडल प्लेन इज फाउंड इन विच ऑर्बिटल, आसान है, 2l तो 2s, यहाँ पे 3s 2p बिकॉज l इज इक्वल टू 1 n1 l0 1s। तो यहाँ पे क्या होगा, नोडल प्लेन हमने देखना है, वो जाहिर सी बात है इसमें नोडल प्लेन्स नहीं होते, इसमें नहीं होते। अब 2p पे होते हैं, मान लो अगर मैं px ऑर्बिटल ऐसे बनाऊँ तो नोडल प्लेन होगा बीच में से, दिस विल बी द प्लेन, तो दिस विल बी द आंसर। तो आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 4d इलेक्ट्रॉन। क्वार्टर नंबर स्पेसिफाई करने, 4d इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली बात है n का वैल्यू 4 होगा, d का वैल्यू 2 होगा, बिकॉज l इज इक्वल, अरे यार L का वैल्यू होता है S के लिए 1, P के लिए 1, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2। तो यहाँ पे 4D है ना, N इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों में से आंसर है। अब स्पिन तो जीरो नहीं हो सकती, इट मे बी प्लस हाफ और इट मे बी माइनस हाफ। अब प्लस हाफ इसने मेंशन किया है, सो दिस विल बी द आंसर। आगे जाएंगे क्वेश्चन 92 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इसके लिए आपको क्या याद रखना है, एन का वैल्यू आपको पता है, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसके बाद एल के जो वैल्यूज होते हैं ना वो n-1 पे खत्म होते हैं, और जो m होता है ना वो -l टू प्लस l होता है इंक्लूडिंग 0, ये भी आपको याद रखना है, 0 to n-1। हाँ, नाउ अब हमने देखना है कि परमिसिबल अरेंजमेंट कौन सा नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के लिए इन एन एटम। तो n अगर 3 है, l इज इक्वल टू 2, सही बात, क्योंकि l होगा ना हमेशा n-1 के रेंज में। तो यहाँ पे m-2 है, सही है, s-1/2 ये भी सही है, क्योंकि l अगर 2 है तो m का -2 होना भी पॉसिबल है। इफ n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, हाँ पॉसिबल है, बिकॉज इट गोज टू 0 to n-1। m इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, इफ l इज 0 m कैन बी 0, s इज इक्वल टू -हाफ ये भी सही है, n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू प्लस हाफ ये भी सही है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे गड़बड़ है, तो ये हम नहीं लिख सकते, m का वैल्यू ना एक्सीड नहीं कर सकता ना l के वैल्यू पे। तो दिस विल बी द आंसर, मींस दिस इज नॉट परमिसिबल। ये बाकी आप देखोगे, दिस विल बी द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 93 विल बी, a 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 meter per second. The associated wavelength will be lambda is equal to h divided by mv. अब h का वैल्यू है 6.6 into 10 to the power minus times 34 divided by m. अब m का वैल्यू कितना है, 0.66 kg into what is the velocity, speed 100 मीटर पर सेकेंड। अब 100 को लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं 6.6 into 10 to the power minus 34 एज सच। अब यहाँ पे लिखो 6.6 और यहाँ पे लिखो 10 to the power -1, सॉरी 10 to the power +1। अब ये 10 to the power +2 था, एक को हमने इसमें यूज़ किया तो +1 बचा, तो इट विल बी 6.6 into 10 to the power -34 into इस +1 को ऊपर लो, 10 to the power -1, नीचे 6.6 है, इसको कैंसिल कर लो, इट विल बी सिंपली 1 into 10 to the power minus times 35 मीटर। तो कहाँ पे, यहाँ पे, दिस विल बी द आंसर। सो 94 वाला क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ d ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along the x एक्सिस। ऑब्वियसली बात है along the एक्सिस, एक तो होता है, सॉरी, एक होता है dz², जो आपको पता है इट्स लाइक दिस, तो along the एक्सिस होती है, और उसके बाद दूसरा जो होता है that is dx² minus y² that is like this, तो along the एक्सिस होती है, तो dz² and dx² y² ये होगा, अरे तो ये होगा आंसर। आगे चलते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या कर लो, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, CO में देखो कितने आएंगे, 6 8 तो 14 आएंगे, CN नेगेटिव में 6 7 13 + 1 को 14 आएगा, इसमें भी NO प्लस में, इसमें 7 6 7 8 15 -1 तो 14 आएगा। अब लास्ट वन है C2 2 -6 6 14 -2, इट विल बी 6 6 12 और +2 कर लो, इट विल बी अगेन 14, तो ए पार्ट विल बी द आंसर, ए पार्ट विल बी द आंसर। तो आगे जाओ,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड हेंस ऑफ लोवेस्ट एनर्जी ऑफ फॉर SO3। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज देखो, अगर फॉर्मल चार्ज देखेंगे, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, 1 2 3। अरे यहाँ पे कैसे मान लेंगे, दिस 1 2 1 2 3 4 1 2। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जाता हूँ, अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम। हमें पता है ना फॉर्मल चार्ज होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस सीधे लिखो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स सीधे। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे ना, इस वाले ऑक्सीजन पे, इस वाले ऑक्सीजन पे, इस वाले ऑक्सीजन पे, ये तीनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं, तो हम लिखेंगे डायरेक्टली फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट, ऑक्सीजन सेकंड, ऑक्सीजन थर्ड। वाई का टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 8, माइनस नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4, माइनस कोवैलेंट बॉन्ड्स आएंगे 2। लेकिन यहाँ पे गलत हुआ, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6 ऑक्सीजन में, माइनस नॉन बॉन्डिंग है 4, माइनस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स है 2। तो इस पे आएगा फॉर्मल चार्ज 0, यही 0 इस पे भी आएगा, यही 0 आएगा इस पे भी। 1 ऑक्सीजन पे, सेकंड ऑक्सीजन पे, थर्ड ऑक्सीजन पे, तीनों पे आएगा फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 0। अब अगर हम सल्फर पे देखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, वो आएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन से 6, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कोई भी है ही नहीं यहाँ पे, और इसमें जो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स है वो है 2 2 2, दैट विल बी 6। तो यहाँ पे भी आएगा 0। तो अगर आप इन तीनों में देखोगे ना फॉर्मल चार्ज ऐसे ही निकालना है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, लेकिन इसमें फॉर्मल चार्ज 0 है, मींस इसमें जो एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी, एंड दिस विल बी द मोस्ट प्रेफर्ड और मोस्ट स्टेबल, एंड दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस पर मॉलिक्यूल इन SI यूनिट एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं 3/2 kT। अब K को लिख सकते हैं हम RNA T, R अपन NA इंटू T। अब 3/2 एज सच, R का वैल्यू 8.314 क्योंकि SI यूनिट में निकालना है, जूल पर केल्विन पर मोल। अब टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री से, दैट विल बी 298 केल्विन। अप ऑन Na एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब मॉलिक्यूल्स लिखेंगे हम क्योंकि पर मॉलिक्यूल निकालने हमने, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू ये आप घर में कर लो, ठीक है, अदरवाइज इट विल टेक इट टाइम। इसका आंसर मैं बोलूंगा आपको क्या आता है, इसका आंसर आता है डी पार्ट। तो अब ये घर में करोगे, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 98, एन आइडियल केस ऑफ बीइंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज, क्यों नहीं कर सकते लिक्विफाइड, इट्स सॉल्वेबल बिफोर बिकमिंग लिक्विड, नहीं, फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल, हाँ ये है, क्योंकि आइडियल गैस जो है ना, जो ओबे करता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, क्योंकि वहाँ पे फोर्स एक्ट होते ही नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। इसका रीज़न हमने इससे पहले भी बोला है किसी इंट्रैक्शन में कि वाई सो, तो वहाँ हमने कुछ पोटेंशियल एनर्जी का बोला है कि Q1 Q2 डिवाइड बाय R², जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होती है ना उतना फोर्स कम होता है। तो इसके बाद ये इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये तो बचपन से हम पढ़ ही रहे हैं, BH3 होल ट्वाइस डाइबोरेन, इसको छोड़ो, ये इसका आंसर आएगा। इन PO4 3 नेगेटिव आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड PO बॉन्ड और रेस्पेक्टिवली आर। तो PO4 3 माइनस, इट विल बी P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O O O, एक नेगेटिव यहाँ पे लोन पेयर बनाते हैं ऐसे, एक नेगेटिव यहाँ पे आएगा और एक नेगेटिव आएगा यहाँ पे। अब कैसे करें हम इस क्वेश्चन को, ये इसका स्ट्रक्चर आएगा, हम स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनाते, लेकिन इट विल टेक ए टाइम, हाउ टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, इसमें लगेगा टाइम। लेकिन अब ये हमारे पास है स्ट्रक्चर, ये P डबल बॉन्ड O है, P सिंगल बॉन्ड O, P सिंगल बॉन्ड O, P सिंगल बॉन्ड O। इस पे कितने लोन पेयर्स हैं 3, इस पे कितने हैं 3, इस पे कितने हैं 3। ये थोड़े से बड़े बनाऊंगा मैं, खबर तो ये बात। अब यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे आएंगे 2। अब
इसके आएंगे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, लास्ट क्वेश्चन, इस पे आएंगे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये पी डबल बॉन्ड वो एक बार यहाँ पे है, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे और चौथी बार यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा जल्दी जल्दी, लेकिन इसके लिए ना हम कलर चेंज करेंगे। तो ये आएगा पी डबल बॉन्ड ओ ओ, अब दूसरी बार ऐसे आएगा, अब ऐसे आएगा, अगली बार हम यहां पे लिखेंगे एंड लास्ट टाइम हम यहां पे लिखेंगे। तो 4 स्ट्रक्चर्स इसके बनते हैं। अब ये माइनस माइनस का जो लिया आप खुद देखो, ठीक है। अब इसको हम कैसे करते हैं, अब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें है PO4 3 नेगेटिव में, जरा सबसे पहले मुझे बोलो। यहां पे 2 3 4 5, तो यहां पे आएंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स 5। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पे हैं, 4 है। अब अगर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स 5 है, तो 5/4 लिख लो, इट विल बी 1.25। ये इसका आएगा बॉन्ड ऑर्डर, PO बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां पे जो हमने निकालना है ना इस क्वेश्चन में PO बॉन्ड ऑर्डर, तो PO बॉन्ड ऑर्डर इसमें आएगा 1.25 के बराबर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स PO बॉन्ड्स कितने हैं 5, और साथ ही में इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है 4। तो हम लिख सकते हैं 5/4 दैट विल बी 1.25, ये इसका आएगा बॉन्ड ऑर्डर। अब हमने क्या निकालना है, द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम इज। अब हम फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, उसके लिए मुझे और एक स्लाइड चाहिए। चलो यही पर अब करते हैं। देखो ये वाला और ये वाला ऑक्सीजन हो जो है, ये तीनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं। अब अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, मान लो इसको हम मानते हैं ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट, इसको हम मानते हैं ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड, इसको मानते हैं थर्ड, इसको मानते हैं फोर्थ। एज यू कैन सी ऑक्सीजन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों एक जैसे हैं ना यहाँ पे। तो हम लिखेंगे इन तीनों पे हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, डेट विल बी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, एंड कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं 1। तो इन पे आएगा -1 तीनों पे चाहे ऑक्सीजन नंबर 2 हो, चाहे ऑक्सीजन नंबर 3 हो, अब चाहे ऑक्सीजन नंबर 4 हो। अब अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट पे, डेट विल बी 6 माइनस नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 ही है, 4 ही हैं, एंड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है 2, तो इन पे आएगा 0। अब अगर हम फास्फोरस पे निकालेंगे, लेकिन फास्फोरस का हमने निकालना ही नहीं है। अब यहां पे देखो 3 का आया हमने -1 और -1, तो -3 आएगा। लेकिन हमारे पास टोटल और +0 आएगा, हाँ? और टोटल हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स है 4, उसको -3/4 -3/4 विल बी -0.75। ये आपको आएगा शायद करना 3/4। तो ये 100 क्वेश्चंस थे, ये आपके थे 100 क्वेश्चंस, हाँ इतना ही है। सो थैंक यू। इसका आंसर है -0.75 will be the formal charge and 1.25 will be the bond order। तो पार्ट ए, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या बोलना है फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज बोलना है ना, तो वो पहले आएगा एंड बॉन्ड ऑर्डर उसके बाद आएगा। हाँ, ए पार्ट विल बी द आंसर। थैंक यू वेरी मच।